السلام علیکم دوستوں، مولانا فضل الرحمان نے آج اسٹیبلشمنٹ سمیت جعلی حکومت کی بینڈ بجا دی ہے۔ رات گئی مولانا فضل الرحمان کی حکومتی پالیسیوں پر شدید تنقید۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عرب نے اسرائیل اور امریکہ کو اڈے دے کر اپنے سمندروں پر امریکن اڈے بنا کر اپنے لیے مسائل پیدا کیے ہیں۔ ہم بحیثیت مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور شہباز شریف اپنی پالیسی واضح کرے۔ آئیے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے، پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو کنٹینٹ سمجھ آ سکے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے مجھے موقع دیا اور ایک طویل عرصے کے بعد ہم ایک بار پھر ڈیرہ اسماعیل خان میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یقیناً یہاں جو سب سے بڑا حساس معاملہ ہے وہ یہاں کے امن و امان کا ہے۔ ٹانک ہو، وزیرستان ہو، ڈیرہ اسماعیل خان ہو، لکی مروت ہو، بنو ہو، دیہاتی علاقے جو ہیں وہ خالی ہو رہے ہیں اور آباد لوگ وہاں سے ہجرت کر رہے ہیں اس بات کے لیے کہ وہ ان کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں، اور حکومتی رٹ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ پھر یہاں حکومت اس ساری صورتحال سے نمٹنے میں کامیاب نظر نہیں آ رہی۔ وہاں پاکستان مشرقی سرحد پر بھی اور مغربی سرحد پر بھی جنگ میں الجھ گیا ہے، جس سے ملک محصور ہو گیا ہے۔ چین بھی پاکستان سے مطمئن نہیں ہے۔ ہم نے چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کو بہت نقصان پہنچایا ہے، اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ ایران بھی اس پوزیشن میں نہیں کہ وہ پاکستان کے کسی کام آ سکے یا ہمارے ساتھ کوئی تجارت کر سکے، معاملات کر سکے۔ اس لیے میری نظر میں اب یہ کسی ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں رہا کہ ہم صرف تنقید کر کے خود کو ذمہ داری سے عہدہ برا کر سکیں، کسی ایک پارٹی کو اس کا ہم ذمہ دار ٹھہرا سکیں۔ یہ قومی مسئلہ ہے اب، اور ہم یہ تجویز دے چکے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہ ایک پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس ہو، جس میں عوام کے اس نمائندہ ادارے کو حالات سے آگاہ کیا جائے، پاکستان کہاں کھڑا ہے یہ واضح کیا جائے، اور پھر قومی مشاورت کے ساتھ اس مشکل سے نکلنے کے لیے راہ نکالی جائے۔ پاکستان اس وقت بمقابلہ ہندوستان کے، پاکستان بمقابلہ افغانستان کے، پاکستان چائنا تعلقات، پاکستان امریکہ تعلقات، اسرائیل کے حوالے سے پاکستان کہاں کھڑا ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کہاں کھڑا ہے، عرب ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آج عرب کہاں کھڑے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اس ساری بین الاقوامی اور علاقائی صورتحال میں ہمیں اپنے ملک کی پوزیشن کو واضح کرنا ہے۔ ہم بڑے مبہم حالات میں جا رہے ہیں اور کوئی واضح پالیسی اختیار کرنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں۔ سو وہاں بھی ہماری سوچ یہ ہے کہ چاہے عرب دنیا کی 1 صدی کی ماضی ہو یا 50 سال کی ماضی ہو، جس طرح انہوں نے اپنی سیاست، اپنی معیشت، اپنی سفارت کا انحصار امریکہ اور مغربی دنیا پر کیا، اور جس طرح تحفظ کے نام پر اور تحفظ کی امکان پر امریکہ کو اور یورپ کو ہم نے اڈے دیے، سمندریں ان کے حوالے کر دی، ہر طرف ان کے بحری بیڑے کھڑے ہیں، اس خیال کے ساتھ کہ یہ اس خطے کے لیے امن اور تحفظ کا سبب بنیں گے۔ آج وہ وہاں کی بد امنی کا ذریعہ بن گئے۔ اسلامی دنیا نے کیا کمایا ہے؟ افغانستان میں 50-55 سالوں سے مسلسل جنگ اور جنگ، اور بین الاقوامی قوتیں افغانستان میں دخیل۔ عراق کا کیا بنا، لیبیا کا کیا بنا، آج ایران کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک ایک کو تنہا کر کے اور ان کے مقابلے میں مسلم دنیا کو لا کر آج جن نتائج کے ساتھ ہمیں لا کھڑا کیا جا رہا ہے، اس پر اسلامی برادری کو اثر نو سوچنا چاہیے۔ اسلامی کانفرنس ہونی چاہیے اور ماضی کے تعلقات پر نظر رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک اسلامک بلاک کی طرف جانا چاہیے۔ اسلامی دنیا کے درمیان
सियासी ताल्लुकात, इस्लामी दुनिया के दरमियान माशी ताल्लुकात, तिजारती रवाबित और इस्लामी दुनिया के दरमियान एक दिफाई मुआहदात, उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। हमारी जो बाहमी तकसीम है कम अज़ कम आज इस्लामी दुनिया की समझ में आ रहा है, क्योंकि जब से ईरान के साथ जंग शुरू हुई है अरब दुनिया में, वहाँ पर अमरीकियों के या यूरोप के अड्डों पर हमलों के बावजूद अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। वो जंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती, वो इसको जज्बाती तौर पर नहीं ले रहे। ये एक बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामी दुनिया की सोच में एक तब्दीली है और ये बुनियाद बननी चाहिए कि हम अगले मुस्तक़बिल के लिए इस्लामी दुनिया के हवाले से सोचें, मुस्लिम बिरादरी के हवाले से सोचें, इस्लामी दुनिया के मफादात के हवाले से सोचें और अपने मफादात में हम इश्तराक पैदा करके उसके लिए मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं। ये इस वक्त हमारा एक पैगाम है इस्लामी दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी, पाकिस्तान की रियासत के लिए भी। और ये कि हालात के तकाज़े क्या हैं उन्हें समझना चाहिए। बंद कमरों में फ़ैसले करना, अवाम बेखबर रहना, अवाम में अदम इत्मीनान रहना, ये शायद अच्छी बात ना हो। हमें हर सतह पर अवाम को एतमाद में रखना होगा। अफगानिस्तान के हवाले से माजी में भुट्टो के दौर में, शौकत के दौर में एक यूनिटी का इत्तेहाद किया गया था, सरबराह खान को तलब की गई थी, तो उसके नतीजे हमने देखे हैं कि फिर उनको चुन कर अलग-अलग खान की निशानी बरत बनाया गया। तो क्या अब हम मुतामिर हो सकते हैं दोबारा सब कुछ इकट्ठा करने के? मेरे ख्याल में अब सूरत हाल वो नहीं है। अब अमेरिका सुपर ताकत नहीं रहा है, वो अपना एक भरम रखने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि शायद ट्रंप अपने ज़ाती दिफा के लिए सब कुछ कर रहा है, अमेरिका की दिफा के लिए भी नहीं कर रहा। और वहाँ पर इस वक्त अमेरिका की अवामी तायीद भी इस वक्त हासिल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि जिस शख्स ने इलेक्शन लड़ा कि दुनिया से जंग ख़त्म करूँगा, उसने इक़्तिदार में आकर दुनिया पर जंग मुसल्लत कर दी है। ये ख़ुद अमरीकियों के और अमरीकी अवाम की नज़र में भी एक सवालिया निशान है। सो इस वक्त पूरी दुनिया असर नौ सोच रही है और ज़ाहिर है सोवियत यूनियन के टूटने के बाद हम पहले से ही कह रहे हैं कि आलमी तब्दीली और तग़य्युरात आएंगी। सो इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका से लेकर रूस तक और चीन तक ये आलमी तग़य्युरात की ज़द में है और हमें खुद बैठ कर खुद एतमादी के साथ अपने मुस्तक़बिल को खुद तराशना होगा। हम ये देख रहे हैं कि ईरान, इसराइल और अमरीकी जंग में पाकिस्तान का जो किरदार है वो गैर वाज़ेह है, हालांकि सालसी की बातें भी हो रही हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या वाकई पाकिस्तान को सालसी का किरदार अदा करने जा रहा है? हमें यही सवाल है कि इस वक्त सालिसी की बातें भी हो रही हैं, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि वो सालिसी कर सके? और शहबाज शरीफ जैसे हुक्मरान के ट्वीट पर ट्रंप का ट्वीट आना खुद ट्रंप की कमज़ोरी और अमरीकी पॉलिसी की कमज़ोरी की अक्कास है। सो हमारी ताकत का आकाश नहीं है। इस हवाले से हमें सोचना चाहिए, नहीं, पाकिस्तान बहरहाल मुहासरे में है और सिवाय सालिसी के किरदार के हमारे पास और कौन सा रास्ता है? मौलाना साहब, ये अफगानिस्तान के हवाले से दो मुतज़ाद बयानी पाकिस्तान के अंदर, केपी गवर्नमेंट एक तरफ होती है, वफाकी हुकूमत के बयान होते किरदार होता है। ये 70 सालों से अफगानिस्तान पॉलिसी क्यों नहीं बना सके? वाले तौर पर क्या मशवरा देंगे, क्या इस हवाले से? जब तक हमारे दिमाग से ये कीड़ा नहीं निकलेगा कि हमने अफगानिस्तान को ज़ेर नगीं रखना है और अफगानिस्तान में कोई हुकूमत वो हमारी मर्ज़ी के बगैर नहीं चलेगी, उस वक्त तक मामला ठीक नहीं हो सकता। हमें एक आज़ाद अफगानिस्तान, एक साहिब इस्तिक़लाल अफगानिस्तान, एक खुद मुख्तार अफगानिस्तान, उस पर तवज्जो रखनी चाहिए और माजी के जो हमारे इस हवाले से कुर्बानियाँ हैं उनको किसी एक कामयाब नताइज तक हमें पहुँचाना चाहिए। हम ये समझते हैं कि अफ़गानिस्तान में सफारती जो हमारी 70 साल या 78 साल कोशिशें हैं वो अब तक क्यों नाकाम हैं, ये मुस्तकिल एक सवाल है। ये काफ़ी नहीं है हमने बड़ी कोशिश की और अफ़गानी नहीं मानते और हमने बड़ी कोशिश की और अफ़गानी नहीं मानते। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि क्यों नहीं मानते। क्या सारी गलतियाँ 70 साल से उन्हीं की तरफ है और क्या हमारी तरफ बिल्कुल कोई गलती नहीं है? ये भी हमें कौमी सतह पर सोचना चाहिए। अफ़गानिस्तान सिर्फ हुकूमत का नाम नहीं है, अफ़गानिस्तान सिर्फ वहाँ अमारत इस्लामिया का नाम नहीं है, अफ़गानिस्तान वहाँ के अवाम का भी नाम है, अफ़गान कौम का नाम है। अफ़गान कौम के हमारे साथ रिश्ते हैं, हमारे साथ उनके ताल्लुकात हैं, हमारे साथ उनकी बिरादरियाँ शरीक हैं और हमारे साथ उनकी मुआशरत शरीक है। इन तमाम रिश्तों को सामने रखते हुए हमें अफगानिस्तान के हवाले से सोचना चाहिए। ये हर वक्त रजीम चेंज और रजीम चेंज और रजीम चेंज की बातें ये शायद न ख़त्म होने वाला सिलसिला बने। ज़ाहिर शाह के ख़िलाफ़ हमने इनकलाब की हिमायत की, फिर उसके बाद कम्युनिस्ट इनकलाब आया और हमने उनके खिलाफ जिहाद, उस वक्त हम अमेरिका जब आया तो हम भी दाखिल शामिल हो गए। फिर वही अमेरिका था उसने तरफ तब्दील कर दिया तो मुशर्रफ के ज़माने में हम फिर अमेरिका की जंग कर रहे थे। आज हम फिर एक दफ़ा अमेरिका की ख्वाहिशात के मुताबिक, ये कैसा अमेरिका है कि पाकिस्तान की अगर इंडिया से लड़ाई हो तो क्रेडिट लेता है कि मैंने जंग बंद करा दी और अगर अफगानिस्तान के साथ लड़ाई हो जाए तो कहते हैं पाकिस्तान ठीक जा रहा है, उसको और करना चाहिए।
तो ये चीज़ें उनकी बदनीयती पर दलालत करती है और हमें किसी के ट्रैप पे नहीं आना चाहिए। वो अब खुद ट्रैप पे आ चुके हैं, फंसे हुए हैं, मुश्किलात का शिकार हैं और वो कामयाबियाँ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान को हर कदम एहतियात से उठाना चाहिए और पार्लियामेंट को एतमाद देना चाहिए। इस्लामी दुनिया के हवाले से आपका बहुत अपना ज़ाती भी असर तो बहुत ज़्यादा है अरब ममालिक में, इस्लामी दुनिया में, तो क्या इनको जब जा करने के हवाले से इस हवाले से आपको सफारतकारी करना? देखिए, सफारतकारी हुकूमतों का काम है, रियासतों का काम है, पार्टियों का काम नहीं होता है। हम पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस जो है उसमें मदद दे सकते हैं। अवाम, हम सब मुसलमान हैं, हम सब भाई भाई हैं, हम एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन अवाम की ज़रूरतों और ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए रियासतें फ़ैसला करें। बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों के ताबे फ़ैसले न करें, अपने मुल्क के अवाम की ख्वाहिशात और उनकी ज़रूरतों के ताबे फ़ैसले करें। मौलाना साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, जिस तरह से आपने उसको एक ब्रीफ किया है, आज वज़ीर आज़म साहब भी जो इत्तेहादी एक मेन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके बड़े हैं, उनसे मुलाकात की, उनको एतमाद मिल गया शायद, और कराची का उन्होंने विजिट किया शायद हमको। आप समझते हैं कि एज अ होल अपोजिशन को साथ शामिल न करना, या आप अपोजिशन में बैठे हुए, तो क्या ये किसी खास पॉलिसी का हिस्सा है, या अमेरिका की तरफ से भी इस मामले को ज़्यादा हवा ना दी जाए और मामला जो है वो अंदरूनी खाना एक महदूद इसमें किए जाए? क्या आप समझते हैं कि इसमें क्या पस मंज़र क्या है? देखिए, पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून या MQM, सब इस बात के दावेदार हैं कि हमारी हुकूमत है और मुश्तरका हुकूमत है। वो के बीच में कुछ कभी कभी तहफ़्फ़ुज़ात भी आ जाते हैं, लेकिन वो अपने इसको एक मुश्तरका हुकूमत कहते हैं। क्या ज़रूरत है कि आज फ़ौजी क़यादत की मौजूदगी में दोनों पार्टियों की क़यादत की बाहमी नशिस्त की ज़रूरत पड़ गई? मैं सोचता हूँ ये काफ़ी नहीं है। ये कुछ और इशारात दे रही है, मनफी इशारात की तरफ ज़्यादा शायद मामलात जाएँ। ज़रूरत इस अमर किया कि पूरे पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए, और जिस तरह वज़ीर आज़म ने भी उम्मीद दिलाई थी हमें कि मैं इस पर गौर करके फिर फैसला करता हूँ, लेकिन अभी तक वो फैसला करने के पोजीशन में नहीं आए। इस पर जल्दी फैसला हमें करना चाहिए। साहब, ये बताइएगा कि पाक अफगान तनाज़े के हल के लिए आप मुज़ाकरात के हामी नजर आते हैं, जबकि ऐसी जमातें जिन्हें रियासत कलअदम करार दे चुकी है, ख़ुसूसन मैं PTP के हवाले से बात करूँगा, क्या उनसे भी मुज़ाकरात होने चाहिए? देखिए, उनसे मुज़ाकरात होने या ना होने के सवाल से पहले हमें ये देखना है कि अफ़गान पाकिस्तान ताल्लुकात के बीच में हायरार्कीज़ क्या है। तो हम उसको बराह रास्त मुज़ाकरात का हिस्सा बनाएं या ना बनाएं, लेकिन उसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसको एड्रेस किए बगैर अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के ताल्लुकात मामूल पर आने में शायद दिक्कतें होंगी। तो अब उसको किस लेवल पे एड्रेस किया जाता है वो अपनी जगह पर एक सवाल है। देखिए, बात यह है कि ये जो इस वक्त जंग है और जिसमें उन्होंने अपने हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, इसने ख़ुद अमेरिका को भी और पूरी दुनिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। अब ज़ाहिर है कि ये वो रास्ता है कि जिससे जनूबी एशिया, मशरक़ी एशिया के तेल की रसद का रास्ता है जो बुरी तरह मुतासर हुआ है। तज़ाद इसको कहते हैं कि कभी तो अमेरिका इंडिया के टैरिफ में इस बात पर इजाफा करता है कि तुम रूस से तेल क्यों ले रहे हो, और अगर तुम रूस के ख़रीदार बनते हो तो फिर आप पर हम टैक्स बढ़ाएंगे, टैरिफ में इजाफा करेंगे। और या वो दिन आ गए हैं कि अमेरिका खुद इंडिया से कह रहा है कि आप रूस से तेल लें। इसी से अंदाज़ा लगाएं कि किस कदर कमजोरी आ गई हैं आलमी सतह पर। अमरीकी अड्डों पे होते हुए क्या इत्तेहाद मुस्लिम अमरीकी अड्डों पे होते हुए, दूसरे सवाल मेरा ये है, आप इस्लामी ब्लॉक की बात की है, क्या इसमें रूस और चीन के साथ ही ब्लॉक बनना चाहिए? देखिए, हमें इस वक्त दुनिया में इलाकाई ब्लॉक बनते जा रहे हैं। मैं तो एशियाटिक फेडरेशन का भी कायल हूँ, और 300 साल कबल जब मईशत का महवर एशिया था और फिर वो कानूनी बना और पूरी सारी हमारी मईशत पर मगरब ने और यूरोप ने कब्जा किया, आज फिर दुनिया की मईशत पलटा खा रही है और मईशत का महवर एक बार फिर एशिया बनता जा रहा है, जिसकी क़यादत बहरहाल चाइना कर रहा है। तो चाइना के साथ ताल्लुकात और एशिया की वहदत उसकी क़यादत में आने वाले वक्त का तकाजा है, और हमें उस हवाले से इलाकाई ताल्लुकात पर भी नज़र रखनी चाहिए। हम आलमी क़ुव्वतों के पैरोकार बनकर इलाके में तनहा हो जाते हैं। आज हम अफ़गानिस्तान के हवाले से भी तनहा, इंडिया के हवाले से भी तनहा, ईरान के हवाले से हम तनहा हो गए, चाइना के हवाले से भी हम तनहा हो गए, और एशिया के जो पीछे ममालिक हैं वो इंडिया के ज़ेर असर हैं, और वेस्ट एशिया के जो ममालिक हैं वो फिर अफ़गानिस्तान के ज़ेर असर हैं। हमारे ज़ेर असर कौन है? हम किसके साथ डील करेंगे, किसके साथ बात करेंगे?